My dad one day came to me and he said, और मेरे पापा एक दिन आए मुझसे कहा, if you will leave Jesus, I'm going to give you bike now. अगर यीशु को छोड़ दोगे तो अभी बाइक दूंगा तुम्हें। Was that my dad? क्या वो मेरे पापा बात करते हैं? नहीं। I said, I'll spit on that bike. मैंने कहा ऐसी बाइक पर मैं थूकना पसंद करूंगा। Amen. And again, there were people, and we have to come to a point where you can recognize who's the source of who is talking to you. और बार बार लोग आके मुझसे बात करते हैं और आपको ये सीखना है कि कैसे पहचाने जो स्रोत है लोगों की बात के पीछे उसको। Imagine Jesus is talking to Peter. कल्पना करें यीशु पतरस से बात कर And रहे हैं Peter says, Jesus, और पतरस कहता है यीशु you are Christ, आप मसीह हैं, the Son of God. जो परमेश्वर के पुत्र He हैं। said, wow, Peter, उसने कहा वाह पतरस, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. लहू और मांस ने तुझे ये बात नहीं बताई, मेरे स्वर्गीय पिता ने बताई है। And then Jesus talks about his crucifixion. और फिर यीशु बात करते हैं क्रूस पर जाने की। What does the Bible say? Peter starts to rebuke him. He gets angry. बाइबल क्या कहती है? पतरस उसको गुस्से से डांटने लगा। वो Same Peter. वही पतरस 10 minutes before, 10 मिनट पहले Jesus said, Father revealed to you. यीशु ने कहा पिता ने तुझसे बताया है। To this Peter now, Jesus said, इसी पतरस से अब यीशु कह रहे हैं Satan, get thee behind me. शैतान मुझसे पीछे हट। Because Jesus instantly recognized it, the source of that statement was Satan. क्योंकि शैतान उस बात के पीछे का स्रोत है, यीशु ने उसी समय पहचान लिया। Young people, be mindful who your company is. जवान लोग बहुत ध्यान दे, इस बात पर चौकन्ने रहें कि कौन आपके साथ के लोग हैं। We'll never understand that we are in a spiritual warfare. Enemy is trying to change, to plant you out of his God's house, to take you out so that you will not read the word of God, to discourage you. और हम लोग ये नहीं पहचानते कि हम एक आत्मिक लड़ाई के बीच में हैं, और इसीलिए शैतान लगातार प्रयास कर रहा है कि वो आपको परमेश्वर के घर में रोपे ना जाएं, इस बात का ध्यान दे, या आप परमेश्वर के वचन में ना बढ़े ताकि वो आपको निराश कर सके जीवन में। Amen. When you start to live for Jesus, there will be people who will hate you for no reason. That's the enemy. जब आप यीशु के लिए जीना शुरू करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे बिना किसी मतलब के, वो शैतान की तरफ से। You know, I remember our pastor was telling us this. We were going in a train. We were going to a meeting. मुझे याद है मेरे पास से मुझसे ये कह रहे थे, हम एक ट्रेन में एक जगह जा रहे थे, And he was sleeping in a different compartment. और वो अलग कंपार्टमेंट में सो रहे थे। And there, his landlord's little son, he was 4 or 5, he was there playing next to him. और उनके मकान मालिक का छोटा 4-5 साल का बेटा उनके बगल में खेल रहा था। And he said, "Yay, uncle, the train is coming. और वो कहता है ए अंकल ट्रेन आ रही है, Train is coming." ट्रेन आ रही है। And the train crashes and everyone dies. और ट्रेन का दुर्घटना हो गई, हर कोई मर गया। He said that once. उसने एक बार कहा है, And pastor was just lying down. और पास से लेटे हुए थे। Again that child said, "Hey, दोबारा उस pastor, बच्चे ने that train is coming." ओ पास से ट्रेन आ रही है। The train crashes and everyone dies. उसकी दुर्घटना हुई, हर कोई मर गया। He said it third time. उसने तीसरी बार कहा, And Holy Spirit suddenly woke him up and said, "These are 3 demons talking to you. Take authority." Because that's what devil plans. और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा ये 3 दुष्ट आत्माएं हैं जो तुम्हारे विरोध में आके इस बात को, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना। That's why it's so important to speak the word of God day and night. इसीलिए जरूरी है परमेश्वर के वचन को दिन रात अपने मुंह से बोलना। So that when enemy gives you a wrong thought, when enemy speaks a lie, the word of God will rise up in your heart as a defense. ताकि जब दुश्मन आपके विरोध में झूठ लेकर के आता है, आपके विरोध में बातें कहता है, तो वचन आपके दिल से सुरक्षा प्रणाली की तरह उठ खड़ा हो। Amen. 1 Peter 5:8. पहला पतरस 5 उसका 8। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सचेत रहो, जागते रहो, वचन कह रहा है चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। The Bible never says that just close your eyes and sleep. No, the Bible says be vigilant. बाइबल ये नहीं कह रही आंखें बंद करके सो जाओ, बाइबल कह रही है ध्यान दो, चौकन्ने रहो।
Because devil is trying to find ways to destroy your life. क्योंकि शैतान रास्ते खोज रहा है आपके जीवन को नाश करने के लिए। Every dream is not from God. हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। If you see anything in the dream which is not right, take authority over that dream, put it in the trash can, and it's done. अगर आपने कोई भी गलत सपना देखा तो उसको उस पर अधिकार लें, उसको कूड़ेदान में डाल दें और खत्म बात। Amen. But let's become aware, even to the level of our thoughts. What are the thoughts that arise in our heart? लेकिन सचेत हो जाएं अपने विचारों की दुनिया में भी कि क्या विचार हमारे भीतर चलते हैं, Because that's where the spiritual warfare is happening. क्योंकि वहां पर आत्मिक लड़ाई चल रही है। It always starts with a thought. वो हमेशा एक विचार से शुरू हो रही है। Amen. Hear this. सुनिए, If it can start with a thought, अगर वो एक विचार से शुरू हो सकती है it can end with a thought. तो वो एक विचार से अंत भी हो सकती The है। depression that started with a thought, जो डिप्रेशन एक विचार से शुरू हुआ था it can end with a thought. वो एक विचार के साथ खत्म भी हो That सकता है। poverty that started with a thought जो गरीबी एक विचार से शुरू हुई can थी end with a thought. वो खत्म हो सकती है एक विचार से। Amen. आमीन। You just allow the word of God to go deep in your heart परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराई में उतरने की अनुमति दें and meditate on the word day and night. और उस वचन पर दिन और रात मनन करें। Okay, now the assignment is to break the strongholds of lies and to replace it with the stronghold of truth. अब जो हमारे जीवन में हमारा काम है वो ये है, जो झूठ के गढ़ हमारे इस विचारधारा में थे उसको कुछ नहीं मिलने वाला। That's our spiritual warfare. ये हमारी आत्मिक लड़ाई है। Whenever devil said anything to Jesus, Jesus said, "Devil, it is written." जब कभी शैतान ने यीशु से कहा, यीशु ने जवाब दिया, शैतान ये लिखा है। Amen. When you're going on a highway and you see an accident, जब आप हाईवे पे जा रहे हैं और एक दुर्घटना देखी आपने वहां पे, what thought does devil give you? क्या विचार देता है शैतान? What do you do? क्या करेंगे फिर? Open your mouth. अपना मुंह खोलो, Treat every thought as if it's coming from a person. हर एक विचार के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वो एक व्यक्ति की ओर से आ रहा है। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? Thought is the language of the spirit realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार है। You know, one day I got up in the morning and I just got this thought, I'm feeling so low. एक दिन मैं सुबह सुबह उठा और मुझे विचार आया कि मैं बहुत ही निराश महसूस कर रहा हूँ। Suddenly I knew what devil was doing. मुझे पता लग गया That's शैतान how क्या he कर रहा brings depression. है। ऐसे ही वो डिप्रेशन लाता है। He tells you, वो आपसे कहता है, I'm feeling, and then you'll be like, हाँ लो तो लग रहा है. and then you agree with that thought. Oh, I'm feeling so low. Oh, I'm feeling so low. Oh, Coffee. The more he tells you, the more you believe it. जितना वो आपको कहता है उतना आप मान लेते हो। And I said, I'm not going to believe it. I'm going to act against it. So I began to dance in my room. और मैंने कहा मैं इस झूठ को नहीं मानूंगा, इसके बिल्कुल विपरीत करूंगा। अपने कमरे में नाचने लग गया मैं। I said, devil, it is written. मैंने कहा शैतान ये लिखा है, In his presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। I never usually speak about that, but I'm telling you, some of you guys will never know the spiritual battles, Pastor. God is about to do amazing things in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत चीजें करने वाला है। You're seeing, we are getting amazing testimony, cancer being healed. You saw that little boy, a creative miracle, the retina was detached, the retina got attached without surgery. आप परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत चीजों को कर रहा है। कैंसर ठीक होता है। आपने देखा वो उस बच्चे का चमत्कार, जिसकी आंख का जो रेटिना है वो अलग था, सर्जरी के बिना ही वो वापस अटैच हो गया। Why? कैसे? Because God is alive. क्योंकि परमेश्वर जीवित है। Because the God that we serve is a living God. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है। Amen. आमीन। Amen. And divine health is our portion. और अलौकिक स्वास्थ्य हमारा हिस्सा है। Divine health is our portion. अलौकिक स्वास्थ्य हमारा हिस्सा है। Amen. So if you're sick in your body, अगर आप अपने शरीर में बीमार हैं,
be ready to receive the healing. तो तैयार हो जाए अपनी चंगाई को लेने के लिए। If you've been mentally oppressed, अगर आप मानसिक रूप से सताए गए हैं, be ready as the anointing of the Holy Spirit sets you free. तो तैयार हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको आज आजाद करता है। Amen. Can you all stand up, please? अपने Thank स्थान you, पर Lord खड़े हो जाएं। Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Shabarala hashendo garala base korala baba. Yabala hala barala sakatala barala baba ba shatatara brala. Habala hashatanama. Thank you, Lord Jesus. How many people are taking a medicine for anything? Like you're sick in your body, you're taking a medicine. Can you show me your hand? कितने लोग किसी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं, अपने शरीर में बीमार हैं और दवाई ले रहे हैं किसी कारणवश? अपना हाथ उठा के Okay, दिखाएं। you have come here with expectation of healing. और चंगाई की उम्मीद के साथ आप आज यहाँ आए हैं। Okay, okay. So I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, don't expect a feeling, expect healing. ये उम्मीद ना करें कि आपको कुछ महसूस होने वाला है, चंगाई की उम्मीद करें कि आप चंगे होंगे आज। Maybe you'll feel tingling, maybe you'll not feel tingling, but that doesn't mean that God is not going to heal you. हो सकता है अपने शरीर में आपको कुछ गर्म सर्द महसूस हो सकता है कुछ भी महसूस ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको चंगा करेगा आज। Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I want you to keep your right hand on the part where you're sick. मैं चाहता हूँ अपना दाहिना हाथ उस हिस्से पर रखे जहाँ आप बीमार हैं। Come on. And I want you to know that you receive healing by grace. You have not earned it. God, it's a free gift for everyone. और मैं चाहता हूँ आप ये जान ले कि आप चंगाई एक मुफ्त के तोहफे की तरह अनुग्रह से पाते हैं, आप उसको कमाते नहीं हैं। It's a free gift. ये एक मुफ्त का तोहफा है। Amen. So come on, just receive your healing. अपनी चंगाई को Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority over every spirits of infirmity, मैं हर एक रोग और बीमारी की आत्मा पर अधिकार लेता हूँ। every spirit that is bringing them pain and affliction. हर एक आत्मा जो उनके जीवन पर दर्द और सताव लेकर आती है उस पर अधिकार लेता हूँ। Father, I release the presence of the Holy Spirit. पिता मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उनके ऊपर खोलता हूँ। In Jesus' name, यीशु के नाम में yes. From the crown of your head तुम्हारे सर से लेकर to the soles of your feet, तुम्हारे पांव तक God's power goes in your system, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शरीर में उतरती है, setting everything in divine order. हर एक बात को अलौकिक रूप से सही करते हुए। I command kidneys to be healed, मैं अधिकार लेता हूँ किडनीज को, कहता हूँ ठीक हो blind जाओ। eyes to be healed. अंधी आंखों को खुलने के लिए In the बोलता हूँ। name of Jesus, यीशु के नाम में digestive system to be healed. पाचन के जो सिस्टम है वो चंगे हो जाएं, Headaches go in Jesus' name. सर के दर्द छोड़ के चले जाएं। In the name of Jesus, right यीशु now, के be नाम में healed. इस समय चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ। It's a free gift. Come on, receive your ये एक healing. मुफ्त का तोहफा है, अपनी चंगाई को Come ले on, लो। receive your healing. अपनी Receive your चंगाई को ले healing. लो इस समय। Receive your healing. चंगाई को ले लो In Jesus' name, यीशु के नाम में। every unclean spirit that is hindering this healing, I command you, come out in Jesus' हर name. एक अशुद्ध आत्मा जो लोगों के जीवनों को सताती है, बाहर आ जाओ इस समय यीशु के नाम में। Come on, be healed. चंगे हो जाओ। Be healed, be healed. Now in Jesus' name, इस समय now यीशु के in नाम में। Jesus' name, now in Jesus' name. चंगे हो जाओ। Hallelujah. Come on, I want you to look at me. मैं चाहता हूँ मेरी ओर देखो। Faith without action is dead. बिना काम के विश्वास मुर्दा है। Hear this. सुनिए, Jesus told a man who had a withered hand, stretch forth your hand. यीशु ने एक ऐसे मनुष्य से जिसका हाथ ही नहीं था, उससे कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा। हाथ withered था, सूखा हुआ। सूखा हुआ हाथ था उसका। यीशु ने कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा। What did Jesus tell? Jesus tell him to do something that he couldn't do. यीशु ने उससे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो वो नहीं कर सकता था। Stretch forth your hand. अपने हाथ को आगे बढ़ा। Come on, quickly check your bodies and do something that you're not able to do अपने before. शरीर को इस समय परखें और कुछ ऐसा करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। Come on. इस Faith समय without अपने शरीर को action परखें। is dead. बिना काम के विश्वास मुर्दा है। Come on, check your bodies. अपने शरीर को परखें इस समय। Come on. Father, I command paralysis to be healed, मैं आदेश देता हूँ इस समय पैरालिसिस ठीक हो जाए, eyesight to be restored. आंखों की दृष्टि ठीक हो जाए। In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. People who got healed, I want you to
Those who got healed, show me your hand. जो लोग चंगे हुए अपने हाथों को उठा के दिखाएं इस समय, Come on, check your bodies. अपने Those who got शरीर को healed. परखें। Yeah, you. Can you come on the left side and just testify what the Lord has done? जो चंगे हुए हैं वो उस तरफ आ जाएं और Volunteers, अपनी can गवाही you दें। just lift your hand so that अपने volunteers can हाथों को see who उठाएं you are. ताकि वॉलंटियर्स देख पाएं आप कौन हैं। Yeah. जो चंगे हुए अपने हाथों को Volunteers, उठाएं। there are 2 people here. Yes. Yes. A sister there in the middle. A sister there at the back. Yes. तो आपके शरीर में कोई हेल्थ इश्यू था जब आप यहाँ पे आई, और आप कब से उस कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रही थी अपने शरीर में, और उस हेल्थ इश्यू के कारण क्या हो रहा था आपके शरीर में? राइट, सो 2020 में आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग एंड डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया था टू वेट लिफ्ट, टू ट्रेन, बिकॉज मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो जैसे ही मैं वो करती थी, 10 मिनट्स इनटू द प्रोसेस आई यूज्ड टू गेट लाइक terrible pain, मतलब excruciating pain in my abdomen and sometimes in my back area. So the ordeal was that I could not even stand up during that time. I had to lay in my bed. I used to scream. My whole family used to surround me that what is happening to her. It was that bad for me. So आपने सुना कलीसिया, हम लोग के कभी भी दर्द होता है पेट में या कुछ, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, तो ये सिस्टर को कुछ भी एक्सरसाइज करने में बहुत भीषण दर्द हो रहा था। शी वॉज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन विच इज इनडिस्क्राइबेबल। नाउ दिस इज अ टेस्टिमनी फॉर समवन हु मे बी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन इन देयर एब्डोमेन और देयर बैक। सो तो आपने इसकी वजह से क्या हो रहा था? आप कहीं जा रही थी, आ रही थी, आने जाने में कोई तकलीफ हो रही थी आपको? इसकी वजह से मेजर चीज़ थी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मैं घर के बाहर कर ही नहीं सकती थी। माई फ्रेंड्स यूज टू कॉल मी या बोलते थे कि मैं पार्क चल रहा, जिम सेशन चल रहा, नथिंग। आई कुड नॉट अफोर्ड टू गो आउट बेसिकली। तो आप डिड यू गो टू अ डॉक्टर या फिर आपने कोई मेडिकल चेकअप या मेडिकेशन कराया? So every single home remedy we tried it out, and homeopathy we tried, but nothing used to work because nobody could tell me what was wrong with me, why it was happening. So that was really frustrating. That am I supposed to live like this? तो आपने बोला 2020 से आपको ये तकलीफ होना शुरू हुई थी। सोचिए 3 साल तक ये दवाई या फिर और अलग अलग नुस्खे करती रही, लेकिन इनको इस दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा था। तो फिर आप ये बताइए कि आप FOLJ आई और आपने FOLJ में क्या अनुभव किया, यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? So like 2 to 3 months in, there was a service regarding deliverance and healing, and Pastor Ankit said that we are going to pray over you. And as he was praying, I felt like a white light go through my stomach. Wow. Amen. Come on. हीलिंग डिलीवरेंस की सभा में उनको ऐसा लगा जैसे एक सफेद प्रकाश उनके शरीर में से गुजरा है होकर। And at that moment, I could not test anything within the service, but I was so sure in my heart that I was healed. So I came in front of the church and declared that I am healed. So next time, like I went home and tried. Since it's been like 2 to 3 months since then, that pain has not come near me. कलीसिया, हीलिंग एंड डिलीवरेंस संडे को चंगाई प्राप्त करी सिस्टर ने बाय फेथ, और उनके शरीर में पूरी तरह चंगाई आ गई। अगले दिन से वो एक्सरसाइज करने लगी बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के। इनका शरीर, इनका पेट और इनका बैक पूरी तरह ठीक है, और आज 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं इस बात को, पूरी तरह ये चंगी हो चुकी हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस चंगाई के कारण आपके परिवार वालों के ऊपर कैसा असर पड़ा? This is the most important thing. My family is not yet believing in Christ, but I know that I shared my healing with them, and my mother has her own problems. So this has definitely opened a door for her to come into this church and receive her healing. And I see that she will be sitting there accepting Christ and praising God. देखा परिवार, परमेश्वर का उद्धार का कार्य सिर्फ चंगाई तक सीमित नहीं रहता, परंतु वो पूरे परिवार को चंगा कर रहा है, उनके दिलों में चंगाई ला रहा है। और इसके साथ साथ क्या क्या अनुभव हुए आपके साथ, जल्दी से बता दीजिए। Since FOLJ, I've been like 6 to 7 months, and I've received so many blessings and direction in my career as well. And I could not pray in tongues. I did not know what praying in tongues was. And it was one service only in which I got to know what praying in tongues was and received the gift as well. So Praise God, hallelujah. I have been making it my lifestyle since then to pray in tongues. So परमेश्वर का कार्य थोड़ा बहुत नहीं है, सिर्फ चंगाई तक सीमित नहीं है, सिर्फ परिवार वालों तक नहीं, परंतु देखिए किस तरह से आत्मा से भर कर यहाँ पे सिस्टर आ रही हैं। So प्रभु को स्तुति करें, तालियां बजाएं यीशु मसीह के नाम में।
थैंक यू सिस्टर विद्या फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमनी। और हमारे साथ सिस्टर लक्ष्मी रावत हैं, इनके जीवन की भी गवाही हम सुनेंगे। तो सिस्टर जी, आप FOLJ में कब से जुड़ी हुई हैं, हमें बताएंगे? मैं पिछले साल 2022 से FOLJ में जुड़ी हूँ। हाँ, पिछले साल 2022 से मैं FOLJ में जुड़ी हूँ। जब से मैंने यहाँ पे आना शुरू करा है, मेरे जीवन में बहुत से कार्य हुए हैं और मैं इतनी आनंदित रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि मुझे देखने वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशी कैसी है। Praise वो मैं God. सारी महिमा अपने पिता परमेश्वर को प्रेज देती गॉड। तो ये बताइए कि आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को लेके क्या घटी हुई थी और आप उसकी वजह से किस तरह से आपने सफ़र किया, शरीर में आपने किस तरह से सहा, और ये कब से हो रहा है? मेरे को पिछले 6 मंथ से लेग में नस जी। में पेन होता था। जी, जी। जब मैं कपड़े धोती थी बैठ के तो मुझे बहुत मतलब उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब मैं इस तरीके से बैठ के कपड़े धोती थी, जब उठती थी तो बहुत ही धीरे से उठ पाती थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी खड़े होने में। So sister is saying that since the last 6 months or 6 months ago, she realized that as she was bending and getting up while washing clothes, she was experiencing a pain in her right leg. Her bones and her nerves were suffering an excruciating pain. So sister जी, ये बताइए कि आप डॉक्टर के पास गई, आपने कोई दवाई लगाई, बाम लगाया, कुछ इलाज कराया इसको? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि हमारे पास जो वचन के साथ हमें जो सिखाते हैं, जो विश्वास के साथ वो हमें कहते हैं कि तुम इसे वचन को पढ़ो और इसमें मनन करो, तो मैंने वही करा। वचन के उससे बोलती गई कि मैं हील हो चुकी हूँ। तो मैंने ये ठान लिया कि मेरा डॉक्टर सिर्फ प्रभु है, प्रभु इसके अलावा मुझे और कोई ठीक नहीं कर सकता। से बहन ने विश्वास की आत्मा को पकड़ लिया और इन्होंने दवाई या डॉक्टरों का सहारा ना लेकर विश्वास से वचन पर खड़ी रही, जो यहाँ से पास्टर अंकित हमें सिखाते हैं। तो ये बताइए कि आपको असली में चंगाई कब मिली यहाँ पर? असली में चंगाई तब मिली मुझे जब पास्टर अंकित यहाँ पे से हीलिंग प्रेयर कर रहे थे कि बीमार, जितने लोग बीमार है कैंसर के, मतलब हर चीज़ के लिए, तो बोले जिनके नसों में हड्डियों में जो पेन है वो अपने लिए विश्वास के साथ इसे ग्रहण करें। तो मैंने उसी समय फेथ के साथ, विश्वास के साथ वो रिसीव करा और मैंने वो अपने लिए ले ली चंगाई। तो उन्होंने उसी समय बोला कि आप मतलब उसी समय बैठ के देखिए, सभी लोगों को चेक करने के लिए बोला था, तो मैंने चेक किया तो उसी समय मेरा वो चला। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सभी जिनके पैरों में तकलीफ है, आप सुन रहे हैं ना, इस सिस्टर ने तुरंत चंगाई अपनी प्राप्त करी और उन्होंने चेक करके देखा और वो बिना दर्द के उठ बैठ रही थी। तो आज आप अपनी भी चंगाई प्राप्त कर सकते हो जैसे इस सिस्टर ने प्राप्त किया। अब ये बताइए सिस्टर जी, प्रभु ने इसके अलावा आपके जीवन में और भी गवाहियाँ दी हैं, तो उसमें से जो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में जो आपको उभारा है, उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि क्या हुआ था आपके लाइफ में? हाँ जी, मैं ज़रूर बताऊंगी कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। मुझे कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, जिससे मैंने किसी का पैसा देना था 25,000 करीब, लेकिन मुझे मतलब उसका फ़ोन आके वो मुझे बहुत मेंटली अपसेट हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद करती मन में। तो मैं संडे के दिन की बात है, मैंने लाइव सर्विस देख रही थी घर में बैठ के, तो जिसमें पास्टर अंकित मतलब यही सब रिसीव कर रहे थे कि फेथ के साथ अपने फाइनेंस ही रिसीव करो। वो मैंने फाइनेंस रिसीव करी। रिसीव करने के बाद संडे के दिन मैं उसी दिन उसके घर पे गई। वो मुझसे करी, मुझे नहीं पता, कहीं से भी तुम मुझे लाके पैसे दो। So this sister had taken money from someone, and that person was asking the money immediately, but she was not able to give. She was watching the live service, and Pastor Ankit was sharing about financial prosperity and how God wishes to prosper us. She heard that. She went to that sister. She said, I don't know where the money is going to be arranged from, and so she was just asking God, how will it be arranged? फिर आगे क्या हुआ कि कैसे आप इस आर्थिक स्थिति से बाहर निकले? तो आगे ये हुआ, मैंने जब फेस से रिसीव संडे के दिन मैंने रिसीव करा घर में, जब वो पीरियड वगैरह कुछ भी करते, मैं दरवाज़ा बंद करके अपने अंदर वाले रूम में जाके वो पीरियड के साथ जिस तरीके से यहाँ पे होती थी उसी तरीके से मैं घर पे उसे रिसीव करती थी। उसी तरीके से परमेश्वर मुझे भी छूता था, वो सब मैंने फेथ के साथ रिसीव करा। फिर उसी दिन नेक्स्ट मंडे को जी मंडे को ना, हाँ। तो फिर मंडे को क्या बोलते हैं, मंडे को मेरे पड़ोस में कोई रहते हैं, तो वो कह रहे भाभी आपको मतलब इन्होंने पैसा देना है, वो बुला रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जब मुझे बुलाया तो कह रहे भाभी मैं आपके हस्बैंड को फ़ोन करके 2 दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गई तो उन्होंने बोला कि मैं ऑनलाइन आपको 50,000 रुपीज़ ऑनलाइन पे फ़ोन कर देता हूँ। तो देखिए किस तरह से परमेश्वर ने अगले दिन ही, जैसे इन्होंने रिसीव किया उसके अगले दिन ही जो अमाउंट इनको देना था उससे ज़्यादा परमेश्वर ने इनके अकाउंट में इनको ट्रांसफ़र करवा दिया। सो प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का कि ना सिर्फ
चंगाई, परंतु आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक समस्या से भी इनको छुटकारा मिला है। सो प्रभु यीशु मसीह को स्तुति दें। और आप में से जो कोई सुन रहा है यहाँ पर, आप भी इस समय विश्वास करें कि प्रभु आपको इस समय चंगा करता है। धन्यवाद सिस्टर जी, आप थैंक यू सो मच। Hallelujah. Come on, we have some more testimonies. कुछ और गवाहियाँ हमारे बीच में जो इसी समय हॉल में हुई है प्रार्थना के टाइम में। Hallelujah. पास्टर, इनका नाम सोनाली दत्ता है और इनको 5-5.5 साल से इनको राइट साइड में शोल्डर से लेकर पूरे हाथ तक इनको दर्द था। जब ये चर्च में आई थी वो दर्द के साथ आई थी। जैसे ही आपने वर्ड रिलीज करा वो शी इज़ कम्प्लीटली हील्ड, देयर इज़ नो पेन। और भी बहुत सारी चंगाइयाँ हुई है। उनको पैरों में दर्द होता था, वो भी पूरा उनके पैर में दर्द पूरा ठीक हो गया। एंड आपने एक और वर्ड रिलीज करा था कि इनके किडनी में स्टोन है, तो वो उन्होंने ये रिसीव करा है। वो अभी तो चेक नहीं कर सकती, वो घर जाके चेक करेंगी दैट उनका जो स्टोन है वो आप हाथ दिखाइए जो आप पहले नहीं कर सकते थे। हाथ का कोई दर्द नहीं है अभी? करिए कुछ जो आप पहले नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते थे पहले आप? जो आप कह रही हैं कि अब ठीक है। ओके। कितने साल से था आपको ये? कितने साल से था? 5 साल का दर्द था मेरा का, हमेशा रहता था? बस अब ठीक हो गया। बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड, कम ऑन चर्च, आमेन। Hallelujah. एक मिनट मिनी, जस्ट गिव हर द माइक। किसने चंगा किया आपको? किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने चंगा किया आपको? यीशु। प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, कम ऑन चर्च, आमेन, आमेन। Hallelujah. यस। पास्टर के ब्रदर आज़ाद हैं, तो इनको 3 हफ्ते से पूरा बैक में इनका पेन होता था। जो डॉक्टर से इन्होंने कहा था स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम इनको हो सकता है। डॉक्टर ने इनको मना किया था, बिल्कुल 1 महीने तक इनको बेड पे रहना पड़ेगा, बिल्कुल झुकने को मना किया था। ऑफिस का काम अभी ये वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया क्योंकि मना कर दिया था डॉक्टर ने बिल्कुल। अभी ये कह रहे थे कि यहाँ पे बैठे थे, व्हेन यू प्रेड द पावर ऑफ द गॉड हिट हिम, और अभी ये पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। आमेन, आमेन। या टेल मी। यस। फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था कि आप 2 महीने तक बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं हो सकते। डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? कि आप फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं हो सकते, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं अब जा करके दिखाइए जरा। ऐसा नहीं कर सकते थे आप? सकते। ये स्ट्रेट रहना था, तो अभी मैं इसको पूरा कर्व में कर रहा हूँ। Amen, अभी amen. मैं इसको आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं अपना वर्कआउट दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, जो मुझे लग रहा था कि मैं 6 महीने तक नहीं कर पाऊंगा। I cannot hear him, guys. मैं जो अपना वर्कआउट 6 महीने तक सोच रहा था कुछ नहीं कर पाऊंगा, बड़ा मैं सोच रहा हूँ कि मैं मंडे से स्टार्ट कर दूँ। Amen. Praise God. Amen. God bless you. Amen. Jesus has healed you. Amen. Hallelujah. Amen. Come on, church. Come on. Woo. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड फैमिली। इनका नाम प्राची है। ये इनको काफ़ी साल से कोल्ड, कंजेशन और कफ की प्रॉब्लम थी। जैसे ही वेदर चेंज होता था, सीजन चेंज होता था, इनको वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती थी। और स्पेशली क्योंकि ये टीचर हैं और ये पढ़ाती थी, तो इनका गला बंद हो जाता था, आवाज़ निकलनी बंद हो जाती थी। तो आज सुबह जब ये यहाँ आ रही थी तो ये बोल नहीं पा रही थी, बट एज पास्टर अंकित प्रेड, इनका गला एकदम खुल गया और इन्होंने जोर जोर से परमेश्वर का धन्यवाद किया। प्रेज लॉर्ड, लव यू पापा, लव यू। Amen. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. पास्टर अंकित का धन्यवाद करना। नहीं आंटी, प्रभु यीशु मसीह का। पास्टर का नाम गीता है जी। और पहले मैं पास्टर अंकित का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरे परिवार को चेंज किया। नहीं, और प्रभु मेरे यीशु मसीह ने बेटे किया को आपके परिवार को। और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करना चाहूंगी। Amen. अब बताइए आप क्या हुआ? पास्टर अंकित ने मुझे बोला जिनकी आंखों में कुछ दिक्कत है वो अपनी आंखों, मैंने अपनी आंखों पे हाथ लगाया, मुझे एकदम रोशनी आई और मेरी आंखें एकदम खुल गई। एक मिनट। आज जैसे ही आपने प्रेयर करी तो ऐसा लगा जैसे कि रोशनी आई। और तो आपकी आंखें कमजोर थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा थी। दिखता नहीं था? नहीं, मतलब दिखता था, चश्मा लगाती थी। अभी बिना चश्मे के दिख रहा है? नजदीक बिना चश्मे के आई है ऊपर। बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ। हालेलुया, कम ऑन। अच्छा एक बात बताइए, यीशु मसीह की जय। कब से आपको ऐसा होता था? अब मुझे बिल्कुल रोशनी, चारों तरफ मेरी रोशनी आ गई। नहीं, आपको कब से साफ नहीं पहले दिखता? से लगा रही हूँ, काफी सालों से लगाती हूँ। कुछ पढ़ सकते हैं आप पहले जो नहीं पढ़ सकते अब थे? मुझे सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही है चारों तरफ।
नहीं ठीक है, रोशनी तो दिखाई दे रही है आपको, रोशनी तो हमें भी दिखाई दे रही है। नहीं, रोशनी के साथ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे? वो कह रही थी आसपास के लोग बिल्कुल नहीं दिखते थे, चश्मे के बिना बिल्कुल नहीं चल पाती थी, लेकिन अब बिना चश्मे के वो चल के आई है पूरा, यहाँ तक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी वो। रोशनी एकदम धुंधला धुंधला लगता था मुझे। आपको धुंधला दिखाई, अब साफ दिख रहा हाँ है? जी, अब साफ हो गया, जैसे सब सामने बिल्कुल साफ दिख रहा है, आप सामने सब साफ दिख रहा आमेन। आप एक काम करिए, इस हफ्ते आप जाइए अपनी आँख टेस्ट कराइए और रिपोर्ट देगा, ठीक है? आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया। थोड़ा सा और शोर मचाइए, यीशु मसीह जिंदा है। इन सिस्टर का नाम अनीता है। इनको 1 साल से उल्टे शोल्डर में प्रॉब्लम थी। ये उससे कुछ काम नहीं कर पाती थी और कभी कभी इतनी दर्द होती थी कि इनको दवाई खानी पड़ती थी। आज जब पास्टर अंकित ने प्रेयर करी, इनका शोल्डर एकदम ठीक हो गया है और ये एकदम मूव कर पा रही है। प्रभु इनके लिए कर सकते हैं तो आपके लिए भी कर सकते हैं। सो जोर से लेट्स प्रेज जीसस। Amen, amen. Yes, come on guys, we'll quickly take this. पास्टर जी, ये ब्रदर राजू हैं, तो ये पहली बार आज यहाँ पर आए हैं। कल रात को बाथरूम में गिर गए थे, इनके सर पे भी चोट लगी है और पूरा बैक इनका दर्द कर रहा था, झुक नहीं पा रहे थे। अभी कह रहे थे जब प्रेयर हुई तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहे। नहीं मारता खुद, लेफ्ट हैंड बिल्कुल ठीक है, तो हाथ उठ रहा है पूरा। हाथ नहीं उठता था? नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा था, दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। ऑटो में भी जब आया तब भी बहुत पेन हो रहा था। जैसे ही प्रार्थना स्टार्ट हुई, आपने प्रार्थना स्टार्ट करना करी, हाथ बिल्कुल। कितने समय से नहीं उठता था हाथ? ये लास्ट नाइट से नहीं उठ रहा था, अर्ली मॉर्निंग में भी चर्च में आते ही। Amen, amen. Okay, आप गिर गए थे कल? Okay, God bless you, God bless you, praise God, praise God. Hallelujah. Come on church. Come on. प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ये सिमरन है और इनको 3-4 इयर्स से 8 इयर्स से इनको ये दिक्कत थी कि लेफ़्ट साइड में इनको बॉडी नम रहती थी और पेन होता था बैठने में और खड़े होने में, और डॉक्टर्स ने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली और डायग्नोस नहीं कर पाए कि एक्चुअली क्या था। सो टुडे व्हेन शी केम एंटर द चर्च, शी केम विद ऑल द पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में थी, लेकिन अभी सिमरन और अभी इसी वक्त कोई भी पेन नहीं है। सिमरन, टेल अस व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था अभी जब प्रार्थना हुई? अभी जस्ट लाइक मेरे को ये हो रहा था कि आपने बोला था अपना राइट हैंड रखने के लिए प्रॉब्लम वाली पे, तो मैंने अपना हाथ रखा एंड मेरे को ऐसे हाथ में फील हो रहा है कि मेरे को लाइक बहुत हैवी फील हो रहा है कि हाथ हटा लो तो। एंड मैंने तब भी रखा, मैंने कहा नहीं, मैं बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम से लाइक सफ़र कर रही हूँ एंड आई डोंट वांट कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। अब मैंने उस चीज़ को रखा एंड आई एम हील्ड राइट नाउ। Amen, hallelujah. So much light and I'm blessed. Amen, amen. God bless you, Simran. Thank you so Yeah, much. Jesus Thanks has to the healed Lord. you. Yeah, amen, amen, Hallelujah. Thank you, Jesus. amen, Thank you, Jesus. amen. ये तो हिंदी बोल रहे हो? ओके। फैमिली, आज लग रहा है प्रभु यीशु मसीह शोल्डर्स और बोन्स ठीक कर रहे हैं। इनके हाथ शोल्डर 1 साल से काम नहीं कर रहा था, आई थिंक उससे ज़्यादा टाइम से। कितने टाइम से था? 6-7 साल से काम नहीं कर रहा था और बीच बीच में दवाई खा रही थी, डॉक्टर को भी दिखाया था। बट आज जब पास्टर अंकित ने प्रेयर करी, अब आप करके दिखाइए क्या हुआ। हालेलुया। एक मिनट नेहा, उनको बुलाओ। So, आप मुझे बताइए कि क्या होता था? बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं, हाथ नहीं, वो ठीक है, चंगे हो गए, वो हमें पता है। पहले क्या होता था? पहले आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? मैंने ये हाथ बहुत कमजोर था, जैसे कमजोर था? मैं आईजू को देखता हूँ, सेवा आदित्य का घर में काम करता हूँ, आईजू को देखता हूँ, बीच बीच में मेरे ये हाथ काम नहीं करता है। अच्छा, तो आप बिल्कुल अभी बिल्कुल चंगा हो गया। एक बार दोबारा घुमा के दिखाइए जरा। ये हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. पास्टर उनके दिए सिस्टर अभिषेका है,
ये मार्च 2022 से FOLJ में आ रही हैं और अक्टूबर 2022 में इनके हाथ में एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया था। Can you just can you show that on the screen? Okay. ये एबनॉर्मल ग्रोथ उनके हाथ में हो गया था अक्टूबर 2022 से। ये जो आप हाँ इधर की तरफ देख रहे हैं। जी जी जी। तो इन्होंने हर बार जब भी आप एबनॉर्मल ग्रोथ की डिक्लेरेशन करते थे कि ये जा रही है, ये रिसीव करती थी बाय फेथ। और ये पिछले 2-3 हफ्ते से आ नहीं पाई थी टेस्टिफाई करने के लिए, बट 3 हफ्ते पहले इनका वो एबनॉर्मल ग्रोथ जा चुका है। Come on. हालेलुया। इनका हाथ पूरी तरह नॉर्मल है। पहले कुछ सेंसेशन होती थी एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण, वो बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह जा चुका है। कितने साल से था आपको ये? पास्टर जी मेरे को 6-7 मंथ से अपने आप ही ग्रोथ हो गई थी? जी, जब आप यहाँ पे प्रेयर करते थे और बोलते थे कि जितने भी लोगों के अंदर कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको अपनी हीलिंग को रिसीव करिए। सो मैं उसको रिसीव करती थी, फिर आप बोलते थे चेक करो, मैं चेक करती थी, ये फिर भी होता था। लेकिन मैं घर पे जाके अपनी ग्रोथ से बोलती थी कि परमेश्वर ने मेरे हाथ को ऐसे नहीं बनाया है, मेरा हाथ ठीक हो गया है। और अपने आप इंस्टेंटली, मुझे नहीं पता ये ग्रोथ कब डिसॉल्व हो गई। मैंने गूगल पे चेक किया था कि इसका सिर्फ ऑपरेशन ही हो सकता है, ये ठीक नहीं होती। और देखो गूगल झूठ बोलता है, मैंने आपको बोला ना गूगल। I told you Google lies. Google is a liar. Amen. परमेश्वर Google is a liar, but the word of God is the truth. Google झूठ बोलता है लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। Amen. और अभी आपके बिल्कुल ग्रोथ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। Come on, can we give a big praise offering to क्या आप Jesus? परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं? हालेलुया। Amen. मैं आपको एक, let me tell you this. मैं एक बात बताता हूँ। When that family came from Northeast, जब नॉर्थ ईस्ट से वो परिवार आया था and that woman was crying, और वो स्त्री रो रही थी, and she said the doctor has said that we have to go for surgery. उन्होंने कहा हमें डॉक्टर ने कहा है कि अपने बच्चे की सर्जरी करानी पड़ेगी And आपको। our kid is just 6 months old. हमारा बच्चा 6 महीने का है। I just felt faith rising in my heart, and I said, this kid will not go for surgery. मुझे अपने दिल में विश्वास उठता हुआ महसूस हुआ और मैंने कहा इस बच्चे की सर्जरी नहीं होगी। And I want to say to anyone here, if doctor has said that you will have to go for surgery, you can believe for the supernatural surgery, and you can declare no surgical knife will touch my body, but I will be healed without surgery. और अगर यहाँ पर कोई है जिससे डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी सर्जरी का चाकू नहीं छुएगा। परमेश्वर अलौकिक सर्जरी आपकी आज करता है यीशु के नाम में। Amen. Also, साथ ही if you're not strong in faith, अगर आप विश्वास में मजबूत नहीं and you feel that is the way God is going to go heal you, then please go for that. But what I'm saying is never copy a formula. और आप मानते हैं कि परमेश्वर आपको वैसे चंगा करेगा तो वैसा करें, लेकिन कभी भी किसी फॉर्मूला को कॉपी ना करें। Amen. And we got amazing report of that woman, and God did a creative miracle. It's a creative miracle that baby's retina was attached. और उन महिला के जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसा रचनात्मक चमत्कार किया है, उस बच्चे का जो रेटिना है वो वापस जुड़ गया है सही जगह पर। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बताऊं? That God is moving in this place. परमेश्वर इस जगह पर चल और फिर रहा है। Amen. हालेलुया। And you can, in Mark 11:24, मरकुस 11:24 में Jesus said, यीशु ने कहा, whosoever जो कोई भी can have whatsoever. जो कोई भी जो चाहे पा सकता है। Let me say that मैं again. दोबारा कहता हूँ, Whosoever जो कोई भी can have पा सकता है whatsoever. जो कुछ वो चाहे। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Whosoever जो कोई भी can have पा सकता है whatsoever. जो कुछ वो चाहता है। Whosoever जो कोई भी can have पा सकता है whatsoever. जो वो चाहता है। Can you put that verse? क्या वचन ला जा सकते Are हैं you यहाँ पर? whosoever? क्या आप जो कोई भी में शामिल हैं? Say I'm a whosoever. बोले मैं जो कोई भी में शामिल हूँ And I can have और मैं पा सकता हूँ whatsoever. जो कुछ मुझे चाहिए। चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक बार एक पंडित जी आए मेरी कुंडली देखने के लिए। Once a पंडित जी came to see my कुंडली और बोला इसकी कुंडली में लिखा है ये कभी पौड़ी से बाहर नहीं जाएगा। and they said it's written in his stars that he will never go out of body. अभी प्रभु मुझे 16 देशों में ले गया है। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट पंडित जी। God has taken me to 16 countries and I'm still looking for that पंडित जी।
क्योंकि मेरी कुंडली ये है. Because this is what my life is. This declares what my life is. What this says जो ये कहता है is true in our life. यही हमारे जीवन का सत्य है. You are not limited by what society has said for you. You are not limited by what your people have said for you. You can do what the word of God says you can do. आप सीमित नहीं हैं जो लोग या समाज आपके बारे में कहता है. आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो वचन आपके बारे में कहता है. Amen. Amen. Hallelujah. आपकी कुंडली आपके पास है. Your stars are in your hand. Amen. Hallelujah. और अमेजिंग बात यह है And the good कि thing ये is कुंडली परमेश्वर ने लिखी है. that this fortune is written by God. Amen. Hallelujah. Yes. Are there more testimonies? Yes. और गवाहियां हैं. Yes, yes, yes. All right. Hallelujah. Okay, go ahead. Hallelujah. Pastor, she is Garima, and from the past 2 years she used to have leg and knee pain, and the doctors have also said that it's a beginning of arthritis. So she has been claiming but last Sunday ko when you released the word, she received it and she has been testing it, and ab wo she can fold her legs, she can get up. What she cannot do it, now she is able to do it. Amen. I have tested my healing like nobody's business. There was the pastors and leaders conference that we had. Every time I would sit cross-legged and I had to get up, I would have that fear that अब तो बहुत दर्द होने वाला है, अब हो सकता है दवाई भी खानी पड़ेगी रात को. But I sat there with the children for 2 days, cross-legged, sitting, getting up, making them eat. I drove back 4 hours, 5 hours long drives, and there was no pain. I've been sitting and looking, finding for their things that they have dropped under the sofa and everything. But there has been no pain for the last 15 days, and I have been telling the Lord, I'm still testing it, and it's done now. Amen. So, Hallelujah. 2 साल से मेरे को डॉक्टर बोल रहा है कि ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस है, जबकि मैं उनके मुंह पे ही रिजेक्ट कराई थी आपकी रिपोर्ट कि मैं नहीं मान रही हूँ कि आर्थराइटिस का बिगिनिंग है, इट्स नॉट फॉर मी. बट द पेन यूज्ड टू बी देयर, यू नो, एंड आई यूज्ड टू रिसीव माई हीलिंग, एंड आई यूज्ड टू टेल माई लेग एंड नी, you are healed by the stripes of Jesus. Manifest your healing. Manifest the healing, you know. Amen. So it did it. Amen. Hallelujah. Praise God. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, arthritis is not your portion. अपने पड़ोसी का कहो, गठिए का रोग आपके लिए नहीं है. Come on, come on, come on. Tell your neighbor, arthritis is not your portion. अपने पड़ोसी को कहो, गठिए का रोग आपके लिए नहीं है. Amen. All right. Can we all stand up, please? आइए साथ पर हम सब खड़े हो जाएं. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to give a big clap offering to Jesus? यीशु के लिए तालियां बजाएं जोर से. Amen. 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 He's the healer. वो चंगा करता है. He's the one who transforms lives. वही है जो जीवनों को बदलता है. Amen. The Lord of Lords and the King of Kings. वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है. You know, you have come to the house of the Lord. आप परमेश्वर के घर में आए हैं. You don't have to go empty-handed. खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है. You don't have to go empty-handed. खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है. Amen. Wow. So, एक गुड न्यूज़ जो हमने आपको बताई, 19 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं यीशु परिवार सत्संग. एक अच्छी खबर जो हमने आपको बताई है, from the 19th we are starting यीशु परिवार सत्संग. और वहाँ होंगे भजन और वो होगी सर्विस शुद्ध हिंदी में. Hallelujah. We will have bhajans and the service will be in pure Hindi. Amen. गुड़गांव में आप देख सकते हैं 19 तारीख से from 19th. और अगर आप गुड़गांव के पास नहीं रहते तो मत आइएगा.
मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ. Hallelujah, praise God. Amen, amen, amen. Wow. FOLJ स्प्रेड होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में. Amen. Gurgaon and then Noida and then Faridabad and then nations. Where is that sister? Okay, there we have a glory testimony. एक महिमा की गवाही है हमारे. Okay, yes sister, tell us. Yeah. Hallelujah. Yes sister. Yes. Yeah. Tell us. Hallelujah. थैंक यू जीसस. मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, मतलब दिख ही रहा होगा सब लोगों को, बट मेरा वेट 70 kg है. 69.55 kg मेरा वेट था कल रात तक. हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में एक फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए मुझे वेट लूज़ करना है ताकि मैं अच्छे ड्रेसेस पहनूं. तो बिकॉज मेरा ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम है, मेरे को खाना बहुत पसंद है, तो सब मुझे कह रहे थे फास्टिंग प्रेयर है 15 तारीख को. I think I don't need that because I got to know something yesterday. मैंने अपने मन में सोचा, बिकॉज हम फेथ पढ़ रहे हैं बुक पास्टर अंकित की, तो उसमें लिखा है कि कोई भी चट्टान वो गिर सकती है और हमारा प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. वो होगा जो हम मांगेंगे. अभी जैसे अभी आपने बोला, मैंने 60 सेकंड का एक टेस्टमनी सुना. पहले मैं Hallelujah. I went to YouTube. मैंने वहाँ पर, पहले मेरा मन कुछ और कर रहा था, लेकिन रेसिपीज एंड ऑल, देन आई वेंट टू यूट्यूब. मैंने वहाँ पर देखा कि ऐसा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता. तो मैंने वहाँ पर लिखा टेस्टमनीज होंगी वेट लूज़ की, तो मैंने वो एक 60 सेकंड की टेस्टमनी देखी एंड उस चीज़ को रिसीव करा. और क्योंकि जो फेथ है, जो पास्टर अंकित ने हमें फेथ सिखाया है, इट्स एक छोटा सा सीड है जो अब बड़ा होता जा रहा है. और सिर्फ मुझे चर्च आते हुए 3 महीने हुए हैं, 3-3.5 महीने हुए हैं, और मैंने उस 60 सेकंड के अंदर प्रार्थना करा थ्रू ब्लड ऑफ जीसस. एंड मेरे स्टमक में मुझे बर्निंग फील होने लगा. एंड जब मुझे ये फील हुआ, आई वेंट वेट, क्योंकि वेट आजकल बहुत ज़्यादा चेक कर रही हूँ, तो वेट चेक करने के लिए मशीन को वापस उठाया. देन मेरा वेट, I'll show you guys, instant in a minute. मुझे आंटी की तरह लाइट ही लाइट दिख रही है. So, आपका वेट 69.55 था, अभी कितना है? 63.75. Hallelujah! Amen. Praise God. Praise God. Anything can possible. God के लिए कुछ भी impossible नहीं है. और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं थैंक यू बोलती हूँ पास्टर अंकित को, ये फेथ का जो हमें टीचिंग देने के लिए. I thank you, Pastor Ankit. Seriously, I thank you. God bless you. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. वो आपको आशीष दे. Oh, hallelujah. Wow. I can see some unhappy people right now. मैं कुछ नाखुश लोगों को देखा हूँ. But I can testify that this healing is true. You know why? पर मैं ये गवाही दे सकता हूँ, ये सत्य है. Because it happened with me. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ. How many people were here with us in Moti Nagar? Show me your hand. कितने लोग थे साथ में जब हम मोती नगर में थे? तो How many people have seen me? कितने लोगों ने मुझे देखा था? So one day I was reading Daniel chapter 10. एक दिन मैं दानियल का 10वां अध्याय पढ़ रहा था. And it says Daniel was fatter and fairer in 10 days. और उसमें लिखा था कि दानियल बाकी लड़कों के सामने उसने वजन बढ़ा लिया अपना और उनसे गोरा हो गया. And I cannot show you my older picture. मैं अपनी पुरानी तस्वीर दिखा सकता हूँ आपको. Because that man is buried in. क्योंकि वो मनुष्य तो गाढ़ा जा चुका है. But in 10 days I gained 10 kilos. 10 दिन में मैंने 10 किलो गेन कर लिया.
Amen. I had to change, like Monica knows it and all the people know it. पास्टर मोनिका को पता है, सब लोग जो समय थे उनको पता है। Change. My jeans would not fit. My t-shirts will not fit. मेरी जीन्स मुझे नहीं आने लगी, मेरे कपड़े मुझे फिट नहीं आने लगे। That month I gained 14 kilos. उस महीने मैंने 14 किलो वजन बढ़ाया। Amen. Everything is possible in the glory. सब कुछ संभव है महिमा में। Amen. आमेन। So all of you who are wanting this miracle, 15th fasting prayer, जितने लोग ये चमत्कार चाहते हैं अपने जीवन में, 15 तारीख को फास्टिंग प्रेयर है, उपवास प्रार्थना है। Amen. Wow, hallelujah. Praise God. Okay, just for 10 minutes and then we'll end the service. But I want you to, let's just go into an intense praise. The Bible says, garments of praise for the spirit of heaviness. बाइबल कहती है स्तुति के वस्त्र। If you feel heavy in your house, अगर अपने घर में आपको भारीपन महसूस होता है, let me tell you a secret. तो मैं आपको एक रहस्य देता To हूँ। always be joyful. हमेशा आनंद से भरा होने Lift के up your hands and start praising God. अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करने Say, लगना। Father, you're so good. बोला पिता आप बहुत ही Thank अच्छे you, हैं। Father, that I am your धन्यवाद son, पिता, I'm your daughter. कि मैं आपका बेटा आपकी बेटी हूँ। Come on, for 10 minutes. 10 मिनट के लिए। Right? Come on. Open your mouth. अपना मुंह खोलें। Say brola ba shata kama hande gere berele. Libla baba shate korala baba ba. Come on, praise him. He's a good father. उसकी स्तुति करें, We वो बहुत worship अच्छा you, पिता Lord. है। We adore you. We glorify you. We magnify you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sombra la bahabate na malaha ya na na madene gedene mozokolo. Come on, praise him. We worship you, Lord. We worship you. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। Come on, lift up उसकी your स्तुति voices. करें, अपनी आवाज़ों को Give उठाएं। him praise. He's worthy. He's उसकी स्तुति holy. करें, He's वो righteous. योग्य है, वो पवित्र है, वो धर्मी है। Come on, receive strength in your bodies now. अपने शरीर में समय बल पाएं। Receive strength in your bodies now in Jesus' name. अपने शरीर में समय बल पाएं यीशु के नाम में।